પૂર્ણ થયું. ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા બાદ ભારતની ટેકનોલોજીને લઈને ખૂબ વાહવા થઈ. બોર્ડર ઉપરના જે હથિયારો હોય, આર્મી જે હથિયારો ઉપયોગ કરે છે તેમાં એઆઈ ટેકનોલોજીનો ખૂબ ઉપયોગ થયો અને જેના કારણે ભારત જે છે એને સફળતા મળી. પરંતુ આજે એ ટેકનોલોજીની વાત છે, એ ટેકનોલોજી ફક્ત બોર્ડર એરિયા માટે નથી, પરંતુ ડિફેન્સની સિસ્ટમની વાત કરવામાં આવે, પોલીસ તંત્રની વાત કરવામાં આવે, તો એ પોલીસ પણ આ ટેકનોલોજીનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકે એ વિષય પર આજે આપણે વાત કરવી છે. રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીની અંદર ગાંધીનગરમાં જે આવેલી છે ત્યાં 2 દિવસની સમિટ યોજાઈ, પોલીસ ટેકનોલોજી સમિટ. અને આ સમગ્ર સમિટ દરમિયાન કેટલી કંપનીઓ આવી કે જે આત્મનિર્ભર ભારત માટે કામ કરે છે, કેટલી કંપની આવી જે સ્વાવલંબન ભારત માટે કામ કરે છે. આ દરેક કંપની જે ડિફેન્સમાં કઈ રીતે ટેકનોલોજીને આગળ લઈ જવા માંગે છે, આ દરેક કંપનીઓ સાથે આપણે વાત કરી. શું કહેવું છે એ કંપનીઓનું, શું કહેવું છે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના જે ઉચ્ચ સ્તરીય જે અધિકારી છે એમનું, અને આ સમગ્ર આખા સમિટ દરમિયાન કેટલો ફાયદો થયો, કઈ રીતની ટેકનોલોજી આગળ વધી છે, આ દરેક વિષય પર આપણે વાત કરીએ. નમસ્કાર, હું અનિલ. રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં 2 દિવસનું પોલીસ ટેકનોલોજી સમિટ કરવામાં આવી. આ સમગ્ર સમિટ શા માટે કરવામાં આવી, આ સમિટ પાછળનું કારણ શું હતું, આ સમિટ ક્યારથી શરૂ થઈ, અને આ દરેક જે વિષયો પર વાત કરવી છે અને સમજવું છે. આપણી સાથે અત્યારે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના પ્રો વાઇસ ચાન્સેલર કલ્પેશ વંડરા અત્યારે આપણી સાથે છે. એક તો આ જે સમગ્ર સમિટની વાત કરવામાં આવે, ડિફેન્સને લઈને આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, શા માટે આ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું? પોલીસ ટેકનોલોજી સમિટનું આયોજન અટલ ઇનોવેશન સેન્ટર જે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના સહયોગથી ફર્સ્ટ ટાઈમ તારીખ 5 અને 6 દ્વારા પોલીસ ટેકનોલોજી મિશન અંતર્ગત આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ખાસ કરીને સ્માર્ટ પોલીસિંગ, મોડર્ન પોલીસિંગ અને ટેકનોલોજીના જે અદ્યતન જે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યા છે, કે જેમાં ડ્રોન ટેકનોલોજી છે, મોડર્નાઇઝેશન ઓફ ટેકનોલોજી છે, સાયબર ક્રાઇમ જે છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, ડીપ ફેક વિડીયોઝ જે છે, એઆઈ ડ્રીવન સોલ્યુશન જે છે, સ્માર્ટ સર્વેલન્સ છે. એટલે જેટલા સ્ટાર્ટઅપ્સ અત્યારે જે છે કે જે સ્માર્ટ પોલીસિંગ ટેકનોલોજી મિશનને મદદરૂપ થઈ શકે અને ઇવન ઇફ ડિફેન્સમાં પણ જે ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ટેકનોલોજી ડેવલપર્સ અને ટેકનોલોજીથી જે લોકોએ અત્યારે આ ઇન્ડિજિનિયસ ડેવલપમેન્ટ કે જે આપણે 40થી વધુ કંપનીઓ જે છે જેને અમારી અટલ ઇનોવેશન સેન્ટર સાથે ટાઈઅપ છે અને એ લોકો પોતાના પ્રોજેક્ટને સારી રીતે ડેવલપ કરી રહ્યા છે, એ લોકોને રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં અમે આમંત્રણ આપેલ છે. અને બધા જ સ્ટોલમાં ખૂબ જ અત્યારે એપ્રોક્સિમેટ ઓલ ઇન્ડિયાના ડીજી, આઈજી અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ જે આ વિઝિટમાં આવશે અને એમને પણ જે ચેલેન્જ પડે છે પોલીસ ટેકનોલોજીમાં અને જે નવું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એના વિશે અમારે એમને માહિતીગાર કરવાના છે, જેથી કરી એક જ જગ્યાએ રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં 40 કંપનીના આત્મનિર્ભર ભારતના જે સ્વપ્ન જે છે, ઇન્ડિજિનિયસ ડેવલપમેન્ટ જે છે, પ્રોડક્ટ્સ બધી એ જ પ્રોડક્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કરી સ્માર્ટ પોલીસિંગને અને પોલીસને કોઈ પણ ઇન્સિડન્સ થાય છે તો એને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી એનું સમાધાન કરી શકે, એ માટેનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ 2 દિવસની સમિટ થઈ અત્યારે, આજે આ છેલ્લો દિવસ, અને આ સમગ્ર સમિટમાં ગુજરાત બહારથી કેટલા પોલીસના અધિકારીઓ અહીંયા આવ્યા હશે, ગુજરાતના અધિકારીઓ પોલીસને કેટલો બેનિફિટ, અને બહારથી કેટલા લોકો અત્યારે આવ્યા હશે? મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમારે આ સમિટમાં ઓલ ઇન્ડિયામાંથી, ગુજરાતમાંથી તો 10 ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને અન્ય જે છે એ પોલીસ અધિકારીઓની વિઝિટ ઘણી સંખ્યામાં થઈ છે, પણ 25થી વધુ સ્ટેટ્સના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ આ સમિટનો લાભ લીધો છે. અને સાથે સાથે એ લોકોએ પણ એમની જે પોતાની જે ચેલેન્જીસ જે હતી એ ચેલેન્જ અને ડેફિનેશન્સ એ અમારા ડેવલપરને આપી છે, અને જે કંપનીઓ આવી છે એ લોકોએ એમને સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરવાની ખાતરી પણ આપી છે. તો એમના પણ એક જ જગ્યાએ એમની જે રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ પૂરી થઈ શકે છે અને એમને પણ બહુ જ ખૂબ જ સેટિસ્ફેક્શન છે. એમ ટેકનોલોજીનો વિષય છે, આરઆરયુ જે રક્ષાને લઈને કામ કરે છે, સિક્યુરિટીને લઈને, અહીંના વિદ્યાર્થીઓને એનો કેટલો બેનિફિટ મળ્યો? ખૂબ જ સરસ આપને કહ્યું કે જે અટલ ઇનોવેશન સેન્ટર જે છે એનું કામ જ એ છે કે જે સ્ટુડન્ટ્સને ઇનોવેશન કે સ્ટાર્ટઅપ કે આઈડિયા આવે જે છે એને ઇન્ક્યુબેટ કરી, સ્ટાર્ટઅપમાં મદદ કરી, ઇવન ઇફ સીડ મની આપી અને એને જે પણ ટેકનોલોજી સપોર્ટ જોઈએ છે એ રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના એઆઈસી સેન્ટર દ્વારા એને મદદ કરવામાં આવે છે. એના એક્સપર્ટો દ્વારા પણ એને ટેકનિકલ જે પણ હેલ્પ જરૂર છે એ પણ આપવામાં આવે છે.
અને જરૂરી સાધનો, કમ્પોનન્ટ અને ટેકનોલોજીનો પણ એ લોકોને અહીંયા અમે સપોર્ટ આપીએ છીએ. ખાસ કરીને અત્યારે અમે કહીએ તો ડ્રોન અને 3D પ્રિન્ટર એ બે અત્યારે મોસ્ટ ડિમાન્ડિંગ ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ અત્યારે મહેનત કરી રહ્યા છે અને ખૂબ જ સારું સંશોધન કરી રહ્યા છે. તમે લોકોએ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી વાળા ચશ્મા જોયા હશે, VR ગ્લાસીસ જે આવતા હતા, અને ગ્લાસ પહેરીને આપણે જોઈ શકીએ કે રિયલ લાઈફ આપણે અનુભવ કરી શકીએ. પરંતુ જ્યારે આર્મી કાં તો ડિફેન્સના જે લોકો છે, કાં તો નક્સલાઇટમાં જે CRPFના જવાનો જાય છે, ત્યારે એ ચશ્મા પહેરીને કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું કે આગળ કોણ છે, કેટલા રેન્જમાં કોણ ઊભું છે, આ દરેક VR વિશે અને આ જે ચશ્મા છે એના વિશે આપણે સમજવું છે. સરજી, ક્યાં નામ હે આપકા? वैभव त्रिपाठी फ्रॉम टैक्टिक्स टेक्नोलॉजीज. वैभव जी, बेसिकली ये VR जो है आपने बताया, एक तो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट हो गया, दूसरा रियल वाला पार्ट हो गया. किस तरह से काम करते हैं? तो जो इसमें दो हेडसेट बेसिकली है, दो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं. वन इज VR जो ट्रेनिंग तक लिमिटेड है, जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आपका जो है मॉनिटर हो रहा होगा और पूरी उसकी डिटेल अवेलेबल होगी, वेदर द ऑफिसर और द पर्सन इज रेडी फॉर द ऑन ग्राउंड जॉब और नॉट. ये इसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं. पूरा डिटेल, पूरी उसकी एक्यूरेसी वुड बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये ट्रेनिंग के तक लिमिटेड है, बट दिस इज मोर एडवांस एंड मोर लाइक मोर अनलिमिटेड स्कोप ऑफ इट. सो देयर आर, हम इसके साथ जो है टैक्टिकल प्लानिंग, थ्रेट डिटेक्शन, जो आपके इसके साथ ड्रोन फीड इंटीग्रेशन, रियल टाइम डेटा इसके साथ अवेलेबल होगा और इसका रिले जो है कमांड कंट्रोल सेंटर पे अवेलेबल होगा. आपकी पूरी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को भी आपका AI इंजन मॉनिटर कर रहा होगा. आपकी जो मैप होंगे वो भी आपके अवेलेबल होंगे और ये पूरा का पूरा चीज़ प्राइवेट नेटवर्क पे भी जो है डिप्लॉय हो सकता है, जिससे कि कोई ब्रीच या कोई जो है हैक होने की चांसेस ना रहें. हम यहाँ पर जो डिफेंस की बात कर रहे थे, तो बेसिकली ये डिफेंस के लिए किस तरह से काम कर रहा है, इधर ये कोई बॉर्डर एरिया हो या फिर नक्सलाइट एरिया हो? ठीक है, बॉर्डर एरिया में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, जब ये इंडियन डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होगा तो उस पूरे पर्सन की, उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी कि वेदर ये पर्सन कहाँ से है, कहाँ को बिलोंग करता है, उसने कब क्या काम किया है, वेदर कोई जो है पुलिस रिकॉर्ड में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है. इसके अलावा अनऑथराइज पर्सन है, सपोज इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के साथ या हमारे इंडियन डेटाबेस के साथ अगर उसका सिंक नहीं है, तो समझ में आ जाएगा कि ये कोई अनऑथराइज पर्सन है. मे बी थ्रेट हो सकता है, कोई एनिमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. और इस वेदर दैट पर्सन इज कैरिंग एनी वेपन और नॉट, वो भी पूरा डिटेक्शन इसके साथ किया जा सकता है, वो भी काफ़ी डिस्टेंस के साथ. ये ड्रोन से भी कनेक्ट हो सकता है? ड्रोन से भी ये कनेक्ट किया जा सकता है. ड्रोन की फीड, ड्रोन सपोज फ्लाई कर रहा है 15-20 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर लोकेशन, तो वो पूरा पाथ सिक्योर किया जा सकता है. वो पूरी फीड इस पे अवेलेबल होगी. आपको कोई अलग से वो उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है कि कंट्रोलर के थ्रू आप उसको देख रहे हैं. इस पे पूरी वो फीड आपके साथ सामने अवेलेबल होगी और आपकी भी पूरी एक एक्टिविटी कमांड कंट्रोल सेंटर में रिले हो रही होगी. तो हम इससे बहुत सारे सोल्जर्स की, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की उसमें जो लाइफ है उसको सिक्योर कर सकते हैं. इफ हमने ड्रोन नहीं लगाया है और सिर्फ ये ग्लासेस पहने हैं, कितनी रेंज है इसकी? इसकी रेंज काफ़ी है. मतलब इसकी रेंज, जितना विजुअल रेंज आप देख पाते हैं उतनी पूरी विजुअल रेंज के साथ आप इसको जो है कवर कर सकते हैं. और आपने बताया जैसे कि नक्सलाइट की आपने बात की, ठीक है, तो अब यहाँ पर नाइट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर रात के अंधेरों में जहाँ पर ये हमले वगैरह होते हैं या फिर वहाँ पर जाना हो, तो किस तरह से फिर काम ये डिवाइस के साथ आप इसमें एक एडिशनल लेयर इंटीग्रेट हो जाती है, जिसमें IR, नाइट विजन, एक्सरे, दोस काइंड ऑफ कैपेबिलिटी विल बी एडेड. और ये आपके कैप के साथ, आपके उसके साथ माउंटेड हो जाएगा. आपको कोई अलग से, और ये आप हैंड्स फ्री है, इसमें आपको आपके हैंड्स पे अगर वेपन है, चीजें हैं, आप वो कैरी कर सकते हैं. ये ब्लॉकर नहीं है और इसको आप डे नाइट मोड पूरे टाइम ऑपरेट कर सकते हैं, पूरे टाइम यूज कर सकते हैं. कहाँ पर यूज हुआ होगा? ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड हो चुके हैं. नेवी सील और उनकी जो मिलिट्रीज है, दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट. और अब इंडियन इकोसिस्टम में इंडियन आर्मी इज ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट. सो अब हम ये सेम चीज़ चाहते हैं कि ये इंडियन पुलिस सिस्टम, सेंट्रल पुलिस सिस्टम और हमारे पैरामिलिट्रीज ये अपना यूज़ इसको करना चालू करें. ये बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है जिसके बहुत सारे स्कोप है. સરહદી વિસ્તારની વાત હોય કે પછી જંગલની વાત હોય કે પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયાની વાત હોય,
જ્યારે કોઈ દુશ્મન દૂરથી નીકળતો હોય રાત્રે કાં તો દિવસે, પરંતુ ત્યાં પ્રત્યક્ષ જવું શક્ય ન હોય, તો એક એવી સિસ્ટમ કે જેનાથી આ જે પણ દુશ્મન નીકળે છે એને આપણે શોધી શકીએ છીએ, એની એ કોણ છે એ જાણી શકીએ છીએ. આ વિષયમાં વિસ્તારથી વાત करवी છે. सर जी क्या नाम है आपका? दीपक कुमार दास। दीपक जी, एक तो मुझे आपकी कंपनी के बारे में और इस सिस्टम के बारे में बताइए. हम लोग इलेक्ट्रो ऑप्टिमाइज्ड से हैं। गुजरात बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स दैट इज़ यूज्ड इन कोस्टल एरिया सर्विलेंस, बॉर्डर एरिया सर्विलेंस एंड क्रिटिकल एसेट मैनेजमेंट। सो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स हैं ऑलरेडी, जो लाइक ड्रोन के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, इवन स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स कैमरेज भी बनाते हैं। हमारे पास अभी आज जो हम लोग RRU इवेंट के लिए लेके आए हैं, वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड नॉक विजन। इट्स ए मीडियम रेंज सर्विलेंस सिस्टम विथ AI एडेड। इट इज़ इसकी जो रेंज है, दिन में इसका रेंज है 5 किलोमीटर की, एंड रात में जो इसका रेंज है 3 किलोमीटर। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा थर्मल कैमरा है, ये हमारा विजिबल कैमरा है, और ये एक LRF है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इट्स ए मिलिट्री ग्रेड रगडाइज्ड ऑल वेदर कंडीशन प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ हमारे पास 6 to 7 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स लगे हुए हैं टू असिस्ट द सोल्जर्स इन ग्राउंड। तो हमारे जो सेंसर्स है उसमें GPS भी है, आपको इससे टारगेट का कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है फॉर फायरिंग पर्पस और फॉर सेंडिंग द डेटा टू द कमांड सेंटर। एंड इसके साथ साथ हमारा ये प्रोडक्ट, जैसे आप देख सकते हैं, जिम्बल के साथ आती है। इट्स लाइक आप 360 डिग्री घुमा सकते हैं एंड अप एंड डाउन 60 डिग्री कर सकते हैं फॉर ए वास्ट एरिया स्कैनिंग। और हमारा जो प्रोडक्ट के जो आती है वो लाइक इवन बैटरी के साथ चल सकती है विथ 6 to 12 आवर्स ऑफ बैकअप, एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती है। मतलब ये किस तरह से कोई पर्सन यदि मान लो नजर आता है कहीं पर, 5 किलोमीटर की रेंज की आपके बात कर रहे हैं, तो फिर वो आगे प्रोसेस क्या करेगा? ये देखिए, अब अभी कोई अगर मान लीजिए कोई डेस्क के लाइक कोई ऑपरेटर है, एंड वो 5 किलोमीटर के दायरे में कोई टारगेट को डिटेक्ट करते हैं, देन द सिस्टम विल रजिस्टर द टारगेट, टाइम एंड लोकेशन, एंड इट विल सेव इन द सिस्टम। और उसके साथ साथ आप एक वार्निंग भी, आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल सकता है ईमेल के साथ, एंड ऑल द फोटोज विल बी देयर। आप उस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कमांडिंग सेंटर से, सो दैट दे कैन गो टू द पर्टिकुलर स्पॉट एंड एग्जामिन इटसेल्फ। और उसके साथ साथ अगर आपको इवन AI बेस्ड है हमारा, AI विल डू ऑल द डिटेक्शन ऑटोमेटिकली। सो इट हैज़ लाइक रेंज इन विद इन 3 किलोमीटर इट कैन डिटेक्ट एवरीथिंग, ऑल द ऑब्जेक्ट्स कैन डू ऑटोमेटिकली। लाइक आपको कोई ह्यूमन बैठाना नहीं पड़ेगा, आपको बस प्रीसेट्स मोड्स भी हैं जिसमें आप मोर देन 50 स्पॉट को आप एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं 24/7। एंड जिसमें आपको, जैसे कि मैंने बोला, 3 किलोमीटर का जो रेंज है, वो प्रीसेट के मोड के टाइम पे ही आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्पॉट पे कोई भी इंट्रूजन होता है या फिर कोई भी अनऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, द AI विल डिटेक्ट ऑटोमेटिकली एंड लेट यू नो कि आपको यहाँ पे एक इंट्रूजन हुआ है, यू कैन गो अहेड एंड टेक द एक्शन। इट्स ए ऑफेंसिव काइंड ऑफ डिवाइस, एंड एज आई सेड, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। ये तो हो गया डिफेंस के लिए. इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करें कि वहाँ पर किस तरह से फिर ये है? हमारे पास अभी एक इंडस्ट्रियल बेस्ड सिस्टम भी है, जिस ये डुअल यूज पर्पस के लिए है, यूजेस पर्पस के लिए। इसमें आप टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, एंड इसमें आप टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, एंड डे एंड नाइट सर्विलेंस भी करवा सकते हैं। और अभी जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग का जो कैपेबिलिटी है, वो -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के लिए है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप क्रिटिकल एसेट्स होते हैं हमारे, मान लीजिए पावर स्टेशन होते हैं, पावर ग्रिड्स होते हैं, जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्टिंग पोजीशंस होते हैं, जिसमें आपको 24/7 ऑल वेदर में आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना होता है, क्योंकि दोज इक्विपमेंट्स आर प्रोन टू माल फंक्शन ड्यू टू टेम्परेचर राइज। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक ट्रांसफार्मर है जिसका मान लीजिए कोई टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, तो दैट कैन गो फॉर माल फंक्शन। तो आप वहाँ पे 220 डिग्री सेल्सियस या फिर 240 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं सिस्टम में। एंड बहुत सारे आपको ऐसे दूरी में है, लाइक 200 लाइक 10 मीटर, 5 मीटर एंड डिफरेंट पोजिशंस में है। यू कैन मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ 50+ स्पॉट्स और इक्विपमेंट्स एट द सेम टाइम।
और मान लीजिए किसी का भी टेम्परेचर थ्रेशोल्ड पॉइंट से ऊपर जाता है, द सिस्टम विल लेट यू नो विथ अलार्म, विथ रिपोर्ट्स एंड विथ मोबाइल नोटिफिकेशंस एंड ईमेल नोटिफिकेशंस ऑल्सो, सो दैट आप वहाँ पे जाके आइदर कोई भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं. વર્ષોથી આપણું જે પોલીસ તંત્ર જે છે એ વ્યવસ્થાની સાથે સાથે કે ટેકનોલોજીની વાત હોય, પરંતુ એક વ્યવસ્થા એ હતી કે જેમાં ડોગ એટલે કે પ્રાણીઓ રાખીને પ્રાણીઓની સૂંઘવાની શક્તિ વધારે હોય એટલે એ પ્રાણીઓ જે છે એ પોલીસ તંત્રમાં મદદ કરે, એમને થોડી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. પરંતુ આ ટ્રેનિંગ આપવાનું તંત્ર કઈ રીતે કામ કરે છે, શું વિદેશો કરતાં આપણી ટેકનોલોજી કેટલી આગળ છે, કાં તો કેટલી આગળ લઈ જવી છે, આ વિષય પર આપણે અત્યારે વિસ્તૃતથી વાત કરવી છે. સરજી, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिलिप भट्ट है. फिलिप जी, एक तो ये जो K9 वाला जो विषय, तो K9 क्या है मुझे ये समझाइए, एंड देन आप उस विषय में किस तरह से काम करते हैं. तो K9 बेसिकली डॉग को कैनाइन बोलते हैं इंग्लिश में. तो K9 जो टर्म है वो उसके लिए यूज होता है जो डॉग सिक्योरिटी के लिए ट्रेन किया गया हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो या डिटेक्शन हो. अगर वो सिक्योरिटी सेटअप में मदद कर रहा है उस डॉग को K9 बोला जाता है. और मैं इस बिजनेस में 40 ईयर्स से हूँ. हमने कमांडो केनल्स शुरू किया हैदराबाद में और हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने डॉग सप्लाई करे हैं. एंड हम लोग नार्कोटिक डिटेक्शन डॉग्स, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स, इस तरह के डॉग्स ट्रेन करते हैं. डॉग ट्रेनर्स भी ट्रेन करते हैं वर्ल्ड ओवर. मैंने मलेशिया में, स्विट्ज़रलैंड, इटली, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग दी है ट्रेनर्स को एंड डॉग्स को. एंड वही एक्सपर्टीज़ अब हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके यहाँ पे अब इंडिया में लेके आ रहे हैं. इंडिया में डिफेंस में किस तरह से अभी तक ये जो है ये काम कर रहा है. जी, इंडिया में अगर मैं कहूँगा तो ओवरऑल पुलिसिंग को अगर ले लिया जाए तो जनरली जो हमारे ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं और जो हमारी मेथोडोलॉजीज है वो अभी काफ़ी आउटडेटेड है. अगर हम बोलते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर हम लेट्स से यूरोप इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर उसको लेके चलते अगर वो 10 है तो इंडिया इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 3 or 4. और अलग अलग कोशिशें करी गई हैं इसको बढ़ाने की, कि इसको इम्प्रूव करें, अलग अलग कोशिश करी गई हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नींव के ऊपर काम बहुत कम किया गया है. तो क्योंकि इंडिया में फाउंडेशनल ट्रेनिंग डॉग ट्रेनिंग के बारे में बहुत कम होती है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि वी विल फाउंडेशन ट्रेनिंग एंड टॉप लेवल ट्रेनिंग दोनों एक जगह में मिले और वो RRU कमांडो K9 में होगा. आपको इतने साल हो गए हैं, तो जनरली कौन से डॉग, मतलब कौन सी ब्रीड जो है वो डिफेंस में यूज होती है. सर ये थोड़ा वेदर का भी काफ़ी रोल होता है, थोड़ा ट्रेनिंग लेवल का भी रोल होता है. तो डिटेक्शन के लिए बेस्ड ऑन मेरा माई लर्निंग इन इंडिया, मेरे हिसाब से लैब्राडोर इज़ द बेस्ट सूटेड ब्रीड इंडिया के लिए. लेकिन मैंने ये देखा कि इंडिया में लैब्राडोर ज़्यादातर ओवरवेट और अनफिट रखे गए हैं. हमारे फोर्सेस लोग जनरली घर में भी बहुत मोटे मोटे लैब्राडोर रखते हैं. अगर लैब्राडोर को थिन और लीन रखा जाए तो इट्स द बेस्ट ब्रीड बिकॉज इट हैज़ द राइट बैलेंस इन मल्टीपल, अलग अलग तरीकों से वो बेस्ट सूटेड ब्रीड है. आजकल बेल्जियन मेलोनाइज का काफ़ी प्रचलन है, लोग उसको भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हैंडलर भी फिर एक अलग लेवल तक ट्रेन करना पड़ेगा. जर्मन शेपर्ड, कॉकर स्पैनियल, ये जो कॉमन ब्रीड्स आजकल इंडिया में डिफेंस में यूज़ हो रहे हैं, वही ब्रीड मेरे हिसाब से आर द बेस्ट सूटेड फॉर दिस वर्क. ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है और किस तरह से होती है. तो ट्रेनिंग मोटे मोटे अगर देखा जाए तो 2 तरह की होती है, प्रोटेक्शन और डिटेक्शन. और प्रोटेक्शन की जो ट्रेनिंग होती है वो डॉग कम से कम 8-9 महीने की उम्र के बाद से शुरू होती है एंड वो एक करीब 6 महीने की ट्रेनिंग होती है. डिटेक्शन की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने की उम्र से शुरू कर सकते हैं और वो करीब एक 9 महीने तक की ट्रेनिंग होती है. तो आप आइदर वे डॉग करीब 1-1.5 साल की उम्र तक तैयार हो जाता है. આપણે કોઈને ફોન કરીએ ને ત્યારે એ ફોન ઉપર એક કોલર ટ્યુન વાગે છે, અને સાયબર સિક્યોરિટી લઈને એક કોલર ટ્યુન હોય છે કે જેમાં તમે લોકો જે છે કે સિક્યોરિટી કઈ રીતે રાખી શકો છો, કયા મેસેજ તમારે અપનાવવા, કયા ન અપનાવવા, આ દરેક વિષય પર અત્યારે હાલ ખૂબ જ જોરશોરમાં વાત ચાલી રહી છે. પરંતુ આ સાયબર સિક્યોરિટીને લઈને સરકાર કેટલી સજાગ છે, અને આપણી સાથે જે કંપની છે કે જે આને લઈને કઈ રીતે કામ કરે છે એના વિશે આપણે જાણવું છે. સરજી, क्या नाम है आपका? अभिजीत आनंद. एक तो आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से काम करे और किस विषय पर काम कर रही है. हमारी कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स बनाती है. हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है भारत NCR, भारत नेशनल साइबर रेंज, जिसके द्वारा हज़ारों स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर डिफेंड कर पाएँ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीसो डैशबोर्ड जहाँ पर नजर आ रहा है, ये सीसो डैशबोर्ड है क्या, किस तरह से आया. तो सीसो का मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर.
हर बड़ी कंपनी के अंदर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे, एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करे। हमने सीसो डैशबोर्ड नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जिसके द्वारा जो सीसो है उसको दिख सकेगा कि वो कितना सक्षम है फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ऑलरेडी कोई चोर अंदर घुस चुका है? क्या किसी वर्चुअल मशीन पे रैंसमवेयर अटैक होने की संभावना है? अगर है तो पहले दिखे, और अगर हो रहा हो तो किसी इंसान को इन्वॉल्व ना होना पड़े। सिस्टम इतना केपेबल हो कि वो ऑलरेडी अटैक को डिटेक्ट करे और तुरंत उस वर्चुअल मशीन या उस कंप्यूटर को जिस पे अटैक हो चुका है उसको तुरंत नेटवर्क से बाहर निकाल दे ताकि और आगे स्प्रेड ना हो सके। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब तक आपने कहाँ पर ये ट्राई कर चुके हैं? सो हमने मल्टीपल ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको डिप्लॉय किया है, मल्टीपल डेटा सेंटर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री में डिप्लॉय किया है, मल्टीपल आर्म्ड फोर्सेस, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज वो सिक्योरिटी के लिए वो हो जाएगा, बट मल्टीपल आर्म्ड फोर्सेस और एजेंसीज के अंदर हमने इनको डिप्लॉय किया है जहाँ पे हमारे कस्टमर्स इसका लाभ उठा रहे हैं। हमने इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से लेकर एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है जहाँ पे अटैक्स को हमने रोक के दिखाया है, और साथ में सिर्फ हमने सॉफ्टवेयर ना डिप्लॉय करके अपना मैन पावर वहाँ पे डिप्लॉय किया है ताकि हम कंटिन्यूसली 24/7 अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। साइबर सिक्योरिटी जो साइबर डिपार्टमेंट है अपना, जहाँ पर पुलिस वहाँ पर जो कार्यरत है, कोई पर्सन यदि वहाँ पर जाता है कंप्लेन लेके, क्या वहाँ पर भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स वगैरह कार्यरत है, या फिर वहाँ किस तरह से फिर काम चलता है? हम आज यहाँ पे सेंट्रल आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताने आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे हमारी बाकी आर्म्ड फोर्सेस ने इस सॉफ्टवेयर का लाभ लिया है, हम 100% श्योर हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जिनका काम है देश को सुरक्षित रखना, वो भी इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। कहते हैं कि 2 तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एक आईटी और एक ओटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि आईटी के अंदर अगर चोरी होती है या ब्रीच होता है तो रेपुटेशन लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, और अगर ओटी में लॉस होता है तो जान जा सकती है। ओटी का उदाहरण हुआ ट्रैफिक लाइट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हमारा उद्देश्य है, हमारा मिशन है कि हम दोनों आईटी और ओटी को सुरक्षित कर सकें। दैट इज़ व्हाट आवर चार्टर एंड मिशन इज़। સિક્યુરિટીની વાત હોય ત્યારે ફક્ત ડિફેન્સ સિક્યુરિટી કે પછી પોલીસ સિક્યુરિટી જ નહીં, પરંતુ ઘણીવાર એવું હોય કે જ્યારે તમે પરીક્ષા આપતા હોવ, એક્ઝામ આપવા બેઠા હોવ અને એ વખતે ઓનલાઈન એક્ઝામ હોય, જ્યારે કેમેરો ચાલતો હોય ત્યારે પણ સિક્યુરિટીની વાત આવતી હોય છે, ક્યાંક ચીટિંગ ન થાય એના માટેની વાત આવતી હોય છે. તો આ બધા જે પેરામીટર્સ જે કામ કરતા હોય છે એ કઈ રીતે કામ કરે છે, બેઝિકલી એનામાં કયા કયા સોફ્ટવેર્સ વર્ક કરે છે, એના વિશે આપણે સમજવું છે. આપણી જોડે એક એક્સપર્ટ છે. સરજી, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण द्विवेदी है। जी, बेसिकली अपनी एक तो कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी करती क्या है और किस तरह का कार्य है? देखिए, हम एक ऑनलाइन असेसमेंट कंपनी है और पिछले 75 साल पुराना इतिहास है हमारा, और हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट करने में उसमें एक ह्यूमन प्रॉक्टरिंग होती है, एक एआई बेस्ड प्रॉक्टरिंग होती है। हम दोनों ही तरीक़ों से काम करते हैं, और ये हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म हो जिस पे कोई भी एग्जामिनेशन बिना किसी पिल्फरेज के, बिना किसी लीकेज के किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई पेन एंड पेपर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें पेपर प्रिंटिंग की ज़रूरत है, फिर वो प्रिंटिंग में जाती है, फिर ऑफिस में जाती है, तो कई हाथों से गुजर के जाती है, तो पिल्फरेज के चांसेस होते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन है। आप अगर ऑनलाइन आते हो तो आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है आमतौर पर। नंबर 1। नंबर 2, जो कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्चीवियस अगर करना भी चाहे, जैसे उसका फेस रिकग्निशन का सिस्टम है कि जब वो आएगा अपने आई कार्ड दिखलाएगा, जब आई कार्ड दिखलाएगा, आई कार्ड से मैच मेकिंग होगी, मैच मेकिंग के बाद ही उसको आगे चढ़ पढ़ने के लिए बोला जाएगा। दूसरा, जब वो एग्ज़ाम दे रहा हो उस दौरान मान लीजिए आप बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं और कीबोर्ड कोई और पास में ले जाए, तो कीबोर्ड अगर पास में कोई लेके जा रहा है तो उसको पता चलेगा कि किसी और की टाइपिंग स्पीड है, वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये टाइपिंग स्पीड उसकी नहीं थी। उसी तरह से और भी जितनी मिस्चीवियस हो सकती है एग्ज़ाम देने के दौरान में, उसको वो चेक एंड बैलेंस करता है। एक कंप्लीट एंड टू एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म हम देते हैं। यहाँ पर जो पुलिस टेक्नोलॉजी का जो पूरा सेमिनार है, जहाँ पर बहुत सारी कंपनी आई है, तो पुलिस टेक्नोलॉजी के लिए किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है? देखिए, इनके जितने रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, कल हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कल बहुत लोग आए थे मल्टीपल स्टेट से, जो पुलिस हेड्स आए थे उनसे ये बात हुई, बीएसएफ वालों से बात हुई। तो ये जितने इनके एग्जामिनेशंस हैं, जो इनका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम इनको अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में करने के लिए मुहैया करा सकते हैं, और ये कंप्लीट सिक्योर्ड होगा, फास्ट होगा, अजाइल होगा, एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपके टेस्ट को हर तरह से सिक्योर्ड वे में करा दिया जाए।
कितने टाइम पहले पेपर आप मतलब उनको देते हो अलर्ट ये करवा? बड़ी मजेदार बात है। पेपर तो आप चाहे तो आप एक दिन पहले हर सेंटर में भेजना पड़ता है। अब आप चाहे तो आप चाहे 15 मिनट पहले आप चाहें कि जो वहाँ पर प्रॉक्टर है या जो टीचर है जो वहाँ गार्ड कर रहा है क्लासरूम को, अगर वो चाहते हैं कि 10 मिनट पहले ही मिले तो वो 10 मिनट पहले ही उसको खुलेगा, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। उसको वो पासवर्ड तभी मिलेगा जब वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले चाहेंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन दे देगा तब उनको वो पेपर देखने का मौका मिलेगा, बच्चों को ही मिलेगा। तो उसी तरह से इसको पूरी तरह सिक्योर किया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक रूम बना रहे हैं जिसको हम वॉर रूम बोलेंगे, उसमें हम पेपर ला के रखेंगे 2 दिन पहले और फिर उस पर सिक्योरिटी लगेगी, फिर भी पिलफरेज हो जाए, आमतौर पर शायद ऐसा ही होता होगा। तो वो अब आप बिल्कुल रोक सकते हैं। તો કુલ મળીને રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલું આ પોલીસ ટેકનોલોજી સમિટ 2 દિવસનો આ કાર્યક્રમ. અને એક વસ્તુ ખાસ જો ઓબ્ઝર્વ કરવા જેવી હતી એ હતી કે મોટાભાગની એટલે કે દરેક કંપનીઓ જે છે એ ભારતની કંપનીઓ હતી. કેટલીક કંપનીઓ અમદાવાદની હતી, ગુજરાતની હતી, પરંતુ મોટાભાગની એટલે કે દરેક કંપનીઓ જે છે એ ભારતની, ઇન્ડિયાની કંપનીઓ છે. અને સ્વાભાવિક છે કે આત્મનિર્ભર ભારત, સ્વાવલંબી ભારત એનો આ જે વિષય છે. અને ઓપરેશન સિંદૂર બાદ આ જે ભારતમાં બનેલી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આખા વિદેશમાં જતો થાય એ પ્રકારે અત્યારે સમગ્ર ભારતની આ મુહિમ ચાલી રહી છે. અને રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી દ્વારા આ જે છે બીડું અત્યારે ઉઠાવવામાં આવ્યું હતું. અને આ જે કાર્યક્રમ છે એ સફળ કાર્યક્રમ ડિફેન્સ દ્વારા અત્યારે પોલીસની ટેકનોલોજી માટે ખૂબ જ સરળ અને સફળ કાર્યક્રમ રહ્યો હતો. આવા જ પ્રકારના વિષયો સાથે નવી વાતો સાથે આપણે ફરીથી મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.